अंशिका ने इतनी शिद्दत से उसका मन था इस शो पे आने के लिए। दीदी gives me so much love कि मेरा पूरा हफ्ता it goes so well, इतना सारा love बटोर के I'm very happy दीदी। There has just been a lot of comfort जो मुझे अंशिका के साथ हमेशा लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 steps लोगे तो मेंटी हमेशा 4 लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। सो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन है और पूर्वा दीदी कहाँ गई। So let me tell you that my name is Ansika Sahani and I have been an trained host in Clay Lab and I have hosted this season of Clay Talkies and which is our annual structure at Clay Lab. So just because आज मेरे ही पैर का इंटरव्यू है तो मैंने सोचा मैं ही ना क्यों ये एपिसोड स्टार्ट करूं। Hello, this is the 11th episode of this series called Dil Ki Baat with our star pairs. I can't believe it's been so long. And personally, I'm enjoying this journey so much, talking to a new pair every week and bringing their stories to you. Because this is the 11th one, it's special. And we're bringing back a mentor. She's been on this show before with one of her mentees, and today she's back with another one. So firstly, you should already be starting to think about what a great mentor she is to be featured twice, not just with one of her pairs, but even the other one. So very excited for you all to meet them. So hi both of you, so happy to see you both here. Rafpreet, this is your second time on this show. I'm feeling really proud, I don't know about you, that this is your second appearance, not just one mentor-mentee pair that has succeeded, even your second one, and this one is a very recent one. Usually हम लोग उन्हीं pairs को feature करते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा साथ में बिता चुके होते हैं, but अंशिका और आप as a technical mentor-mentee pair सिर्फ इस module से ही हैं. But still you've known each other longer and you've still done such a great job that we thought कि इस pair को फिर भी बुलाना चाहिए. So how do you feel being here again and this time with Ansika? First, I'm like really grateful. I was very surprised when you texted me this, but I have to tell you a little backstory here. So I of course told Ansika that oh हमारा recording है and Anuj and I are on the show and how Anuj is excited, and I'm sure you know that she and Anuj also know each other, right? They've been part of some common cohorts. So बहुत फोमो हो रहा था अंशिका को, एंड शी इज लाइक दीदी मेरा तो होएगा ही नहीं, आप तो अनुज के साथ इतने टाइम से हो, मेरा ना बड़ी विश है कि मैं भी एक दिन वहाँ पे जाऊँ. सो आई थिंक दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ जब बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो ना तो फिर वो हो जाती है. तो अंशिका ने इतनी शिद्दत से चाहा है कि ये एपिसोड हो, तो देयर वी आर. तो इस पूरे एपिसोड का द फैक्ट दैट यू कॉल्ड बोथ ऑफ अस, इट्स नॉट जस्ट रवप्रीत, यू वुड नॉट हैव कॉल्ड रवप्रीत अगर रवप्रीत और अंशिका का पैर नहीं होता तो, इज बिकॉज कि अंशिका ने इतनी शिद्दत से उसका मन था इस शो पे आने के लिए, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे. सो या आई मीन आई थिंक अंशिका हैज बीन अंशिका वो ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में भी. तो आप सही बोल रहे हो, आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद हर अर्लियर, बट वो काफ़ी इनफॉर्मल था. अब आई थिंक हम अब भी इनफॉर्मली बात करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आई थिंक हमने थोड़ा स्ट्रक्चर दैट जर्नी आई लीव टू अंशिका टू डिस्क्राइब बेस्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अंशिका's फर्स्ट mentor, unlike my earlier pairing where I think Anuj and I have had a consistent journey. In fact, मैं कल रात को ही सोच रही थी with this module finishing, I would have finished 15 months with Clay Lab, and it's been absolute delight. तो I think वो वाले हिस्से के लिए हमें अंशिका से पूछना चाहिए कि अंशिका के लिए क्या डिफरेंस था और वो क्यों आना चाहती थी इस शो पे. Definitely, I really want to know कि आपने जो इतना manifest किया अंशिका कि मुझे भी इस शो पे जाना है. What was your motivation? You've seen the previous episodes, and how do you feel to finally be here? So many people are going to know your story after today. So like मैंने first I think मैंने second episode देखा था दिल की बात का, which was of श्रेया. तो वहाँ से मुझे थोड़े glimpse मिले कि I think a pair should be of completing 1 year and then उनका तभी यहाँ पर हो सकता है, because श्रेया उसकी मेंटर के साथ बहुत समय से थी and उसमें वो डिस्क्राइब भी किया गया था. So I was also thinking about that. फिर मुझे रफीक ने बताया कि उनका और श्रेया का भी होने वाला है. So फिर हाँ मुझे like I was like श्योरिटी मिल गई थी कि एक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए उसके लिए, and but I was wishing to come with Rafpreet Didi on this season, like one of the episode of Dil Ki Baat. But then I told her कि you know ये दीदी ऐसा ऐसा होता है, and
उसके लिए तो अब तो हम ही इसी मॉड्यूल में ही मिले हैं, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट अब मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था एंड लाइक आई वाज हैप्पी, बट ऑन द अदर हैंड आई वाज आल्सो विशिंग टू कम विद दीदी। काफी दीदी ने एक बात बोली थी कि बहुत बार आप लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते हो और आप सोचते रहते हो उसके बारे में, एंड देन नेक्स्ट डे यू कम बैक एंड यू से आई कनेक्टेड इट विद समथिंग इन माय सराउंडिंग. So doesn't have to be related to the topic that the module covers, but one thing that you remember कि दीदी ने ऐसा बोला था वो मेरे दिमाग में रह गया, मैं उसके बारे में आज तक सोचती हूँ. Any like thought or anything that you remember that दीदी sometimes said and you still think about it? दीदी ने मुझे बोला था फर्स्ट तो डरना नहीं है, तो उस पर तो मैं काम नहीं कर रही हूँ कि नहीं डरना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो वरना फिसल जाओगे, इधर उधर गिर ही जाओगे ऐसे. तो बिकॉज आई रियली साउंड लाइक दैट ऑन द कॉल, एंड हाँ अंदर से भी है थोड़ा वो बात है कि मुझे याद रखना है. एंड लाइक इस मॉड्यूल से मैंने ये सीखा है बजटिंग का एंड ऑल. सो like I am also a bit involving in my house matters about this budgeting and all, that how I can help my mom and everything. So जो जैसा दीदी ने मुझे सिखाया ये सब करने का, एंड इसलिए मैं अपनी मम्मी से भी और ज्यादा अभी बात करने लग गई हूँ बैंक के बारे में. उससे मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है, और फिर जो नॉलेज मुझे दीदी से और इस मॉड्यूल से मिला है वो भी मैं उसमें अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. That is lovely. Both of you mentioned that हम दुनिया भर की बातें करते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं. नॉट एवरी पेयर इज एट दैट लेवल. काफ़ी पेयर्स बस लिमिटेड हैं कि मॉड्यूल में जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं. सो व्हाट आर दीज टॉपिक्स? So दीदी what happened once कि like सीट्स ऑफ फीस का हुआ था, एंड देन आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो जो सिलेक्शन का हुआ था मेरा, आई वाज ओवरवेल्म्ड एंड ऑल, इतना सब कुछ हुआ था. देन मैंने दीदी को भी बताया इसके बारे में, एंड मेरे एक टीचर को भी बताया था, एंड दोनों ने मुझे अलग अलग डायरेक्शंस दिए थे. एंड दीदी वाज लाइक अंशिका, लाइक you should choose any one person and go with that person. अगर आप दो लोगों की बात सुनोगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, इसीलिए आपको हमेशा एक इंसान की बात सुननी चाहिए और एक ही रास्ते पे चलना चाहिए. तो लाइक वो बात भी है जो लाइक मुझे ऐसे ही रिमेम्बर है. एंड जरूरी नहीं है आप अपने मेंटर से सिर्फ मॉडल के बारे में बात करो, आप दुनियादारी की भी बातें कर सकते हो जिसमें आपके मेंटर को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे इन सब चीजों में भी. एंड दीदी थोड़े फिल्म्स के बारे में बात करती है क्योंकि मैं बहुत कम देखा है मैंने फिल्म्स, एंड मेरी दीदी को पता भी चलने लगा मेरे हादसे से कि मैंने बहुत कम फिल्म्स देखी हैं. तो दीदी मुझे ऐसे पूछती रहती है तुमने शुरू किया है क्या, तुमने कितने फिल्म्स देखे हैं, एंड फिर दीदी ने मुझे अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बताया है, एंड ऐसे ऐसे लाइक एंटरटेनमेंट एंड वर्ल्ड वाइड थिंग्स, ये सारी बातें. एंड हमने हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बात किया है. आई थिंक पूर्वा मेरे लिए ना, मतलब जितना वो मेरे से शेयर करती है मैं भी उतना शेयर करती हूँ. तो हम दोनों को पता है हमने दिवाली पे क्या किया, यू नो अभी 22 को इतना बड़ा चीज़ हुआ कंट्री में. वी बोथ नो व्हाट वी डिड एट आवर होम्स, राइट? तो वी मेक इट अ पॉइंट कि हम मॉड्यूल के अंदर एकदम कूदने से पहले वी आस्क ईच अदर के हाउ वाज योर वीक, क्या हुआ इसके स्कूल में, क्या हुआ पूरा दिन, मेरे ऑफिस में क्या हुआ. सो आई थिंक इट्स टू वे. नो, सो आई जस्ट फील दैट आई थिंक आपने पहले पूछा कि मेंटर मेंटी एक दूसरे से क्या सवाल कर सकता है. मुझे लगता है कि क्योंकि ये रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि तभी आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो अगर वो ट्रस्ट होना चाहिए. तो वो ट्रस्ट काफ़ी टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेंटर को पहले रहना चाहिए, क्योंकि हम विली नीली थोड़े बड़े होते हैं एज में, मतलब मैं और किसी लिहाज से नहीं बोल रही हूँ. तो हमें मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और आप मेरे मेंटी हो, तो आप शायद थोड़ा डरे भी होगे, थोड़े एंग्शियस भी होगे, आपको पता ही नहीं है. आपने वॉलंटियर तो कर दिया, पूर्वा दीदी आए, विवेक भैया आए, बोल दिया हमें भी हिस्सा लेना है. अभी एक दीदी आ गई हैं, भैया आ गए हैं, पता नहीं क्या ही पूछने वाले हैं हमसे. फिर मेरे पास स्कूल का भी इतना सारा काम है. अब अंशिका केस में उसके घर का भी बहुत सारा काम है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो ये जो 1 घंटा मैं दे रही हूँ, इससे मुझे मेरी लाइफ में कोई फर्क पड़ने भी वाला ही नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि पहला स्टेप शायद मेंटर को लेना चाहिए, यू नो. तो मैं इवन अंशिका को शायद नहीं, मैं पहले से जानती हूँ बिफोर वी स्टार्टेड द रिलेशनशिप, बट आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हर. आई टोल्ड हर मेरे घर पे कौन है एक्सेट्रा. और जब इसकी आवाज़ पे हर कॉल पे इतने कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो मैं हमेशा रोक के इसको बोलती हूँ कि ये बोल रहा है कि अरे तुम अंशिका से बात कर रहे हो. तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 स्टेप्स लोगे तो मेंटी हमेशा 4 लेता है, मुझे ऐसा लगता है.
Then you have to be Yeah. that one. You have to break that ice. तो अगर मैं ये सोचूं कि अरे अंशिका को क्या पता चलेगा मेरे ऑफिस में क्या हुआ या मेरे को क्या स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है. यू नो आई ऑल्सो फील लाइटर इसके साथ शेयर करके. फिर हम दोनों का कुकिंग कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. और तो क्या खाने में क्या बनाया काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. सो वो सब रहता है. न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया. तो आई एम जस्ट सेइंग दोस आर स्मॉल थिंग्स, राइट? सो I want my mentees to be a part of life and vice versa. Two things here. One, you mentioned trust is very important. And मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई फील लाइक मैं अपने एज ग्रुप के लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ जितना मैं बच्चों को कर पाती हूँ. डू यू ऑल्सो फील दैट वे? 100%. क्योंकि ये अंशिका मुझे कभी जज ही नहीं करती. Right? She never ever कभी when I'm saying अंशिका, I mean आपने बच्चे बोला, अनुज भी, like you know, they never judge you, right? They are pure. क्योंकि वो and secondly, I think the beautiful thing about a mentor-mentee relationship in a place like Play Lab is that you know you're not doing it for any transaction. This is a pure heart conversation. I am here because I want to do it. She is here because she wants to do it. अब इससे ज्यादा प्योर रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता. अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो, मैं नहीं जानती. क्योंकि हमेशा लेन देन होता है किसी रिश्ते के अंदर. कोई बड़ा कोई छोटा वो है ही नहीं इसके अंदर. इनफैक्ट मैं पूछने वाली थी, आपने आंसर ही कर दिया कि हम बच्चों से कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं. मेंटर्स भी वॉलंटियर्स हैं, तो एक तरह से सब अपने बस विलिंगनेस पे आ रहे हैं. एंड देन एक्सटर्नली हम फंड रेज कर रहे हैं ये करवाने के लिए. सो लॉट ऑफ टाइम्स हमारे डोनर्स ना क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम सब कुछ फ्री में बांटे जा रहे हो और वो कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, कभी भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, एंड हमारी फंडिंग कहाँ जाएगी, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड वी ऑलवेज क्वेश्चन की एक अकाउंटेबिलिटी फीस होनी चाहिए. मेंटर्स को भी एक रजिस्ट्रेशन फी डाल देते हैं, मे बी उससे अकाउंटेबिलिटी आएगी. बट समथिंग दैट यू जस्ट सेड दैट हम दोनों ये करना चाहते हैं, उससे बड़ा लाइक कोई आई डोंट थिंक है like take away from this entire experience. It doesn't have to be transactional. So thank you for saying that. Okay, one more question for you, Anshika. What has been the highlight of your journey with दीदी? अगर आपको दीदी के साथ वाली जर्नी का एक ऐसा कुछ हाईलाइट बताना है कि ये हम दोनों के बारे में बहुत अच्छा है, या फिर एक कोई स्टोरी कि हम दोनों ये चीज़ बहुत अच्छी करते हैं, if you can highlight one very specific thing about you both. For me, like जैसे दीदी ने ही बोला था कि आप जैसे दीदी 2 steps करती हैं तो मुझे 2 steps करने देते हैं या 4 steps शायद. तो आई थिंक दिस इज द मेन थिंग जो मैंने और मेरी लाइक दीदी के साथ मैंने एकदम लाइक हाईलाइट पे ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया यही होगा कि यू नो अब लाइक आपके मेंटर जब आपकी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए. और अगर आपने किया तो फिर वो जो रिजल्ट होगा ना, वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, वो ऐसे हो जाएगा किसी मेंटी के लिए. Okay, bye bye both of you. Lots of love. Thank you so much, both of you. Bye bye.